Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all after vacation. Hopefully, all of you would be fine and safe. I assume that you guys have gone through all the previous lectures and got a good understanding of the past lectures. Now we are going to start new chapter, Measures of Dispersion, chapter number 4. Today we are going to discuss measures of dispersion. Our lecture is 22. Dispersion. What is dispersion? Dispersion means the variability of values about the measures of central tendency. It is defined as the degree to which numerical data tends to spread about an average value of the data. For example, a good batsman plays the strokes to entire field of the cricket ground. All the students come to college from different corners of the city. All the students who take the examination obtain different marks in the papers. Also, the lack of uniformity is called dispersion or variation. As we have seen in the previous chapter, that the measures of central tendency gives us only a single central value around which most of the observations of the data tend to cluster. But this single value cannot be fully representative of the data unless we find a comparison to measure of central tendency, which must in some way express the degree of scatteredness of the observations about some central value. In other words, an average will be meaningful when it is studied through dispersion. Another example to understand the concept of dispersion, consider the daily wages in rupees of the 5 groups given below. First group having values 150, 150, 150 and mean is equal to rupees 150. And second group having values 130, 140, 150, 160, 170 and mean is equal to rupees 150. The third group having values 146, 148, 150, 152 and 154 and mean of these observations also rupees 150. The fourth group having values 120, 130, 140, 165 and 195 and mean of these values are also equal to rupees 150. The fifth group having values 50, 100, 150, 200, 250 and mean of this group values is equal to rupees 150. All the above 5 distributions have the same mean rupees 150, but they differ in variation. Thus, measures of central tendency does not remain representative. We therefore need some extra criteria for comparing the distributions. This is measured by dispersion. The measure used for the study of dispersion or variation are called measures of dispersion. अब इसमें देखें आपके पास 5 ग्रुप्स थे. फर्स्ट ग्रुप में जैसे वैल्यूज़ हैं सारी सेम वैल्यूज़ हैं और उसका मीन जो है वो 150 है. और दूसरे ग्रुप में देखें जो स्प्रेडनेस है वैल्यूज़ की वो मीन से 150 है मीन और मीन से नज़दीक हैं वैल्यूज़ जो हैं वो सारी फैली हुई हैं, जैसे 130 है 10 10 के डिफरेंस से.
इसी तरह से जो थर्ड ग्रुप है उसमें मीन से जो वैल्यूज़ हैं, मीन क्या है, वो एक सेंट्रल वैल्यू है, ठीक है, और ये वैल्यूज़ जो हैं ये उसकी स्प्रेडनेस बता रही हैं। तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये थोड़ी सेकंड ग्रुप से और ज़्यादा स्प्रेड हुई हैं वैल्यूज़। इसी तरह से फोर्थ ग्रुप में जो हैं वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड से भी ज़्यादा स्प्रेड हैं सेंट्रल वैल्यू से वैल्यू, ठीक है, 120 है, 30 है, यानी 30 का डिफरेंस भी आ रहा है उसमें। इसी तरह से जो फिफ्थ ग्रुप है उसमें तो बहुत ज़्यादा स्प्रेडनेस है, ठीक है, वैल्यूज़ की फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू कौन सी है, इसका मीन है जो कि ₹150 है, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज़ जो हैं इस ग्रुप की, हालांकि मीन तो सबका सेम है लेकिन उनकी स्प्रेडनेस क्या है, डिफरेंट है। अब मीन तो सेम है, हम इसमें सेंट्रल वैल्यू या सेंट्रल टेंडेंसी हम यूज़ नहीं कर सकते। हम जो है उसमें क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं उनकी स्प्रेडनेस हम मीन तो सेम है सबका और उनकी स्प्रेडनेस हमने देखनी है। तो स्प्रेडनेस देखने के लिए हम क्या करते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं उसकी डिस्पर्शन या वेरिएशन जो है वैल्यूज़ की, उसको कैलकुलेट करने के लिए। These are some important points to remember. All measures of dispersion are independent of change of origin. That is, constant is added to or subtracted from each observation. They remain unchanged. यानी हर ऑब्जर्वेशन में कांस्टेंट ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, तो उसका जो है ये इंडिपेंडेंट है उससे, उस मेजर्स पे, तमाम मेजर्स पे या डिस्पर्शन पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो है वो अगर डाटा में वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पे नहीं पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो है ये इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन से। चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है कि कोई वैल्यू जो है उसमें ऐड होगी, वेरिएबल में कोई कांस्टेंट ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो उसका इफेक्ट जो है वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पे नहीं पड़ेगा। ऑल मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, लेकिन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो है वो चेंज ऑफ स्केल से इफेक्ट होते हैं। चेंज ऑफ स्केल क्या होता है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट they will be multiplied or divided by the sum constant। कि अगर ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे किसी कांस्टेंट से या उनको डिवाइड करेंगे किसी कांस्टेंट से, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो है वो भी डिवाइड होगा और मल्टीप्लाई होगा उस कांस्टेंट से, ठीक है। ये इफेक्ट होता है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो है ये इफेक्ट होता है किससे, चेंज ऑफ स्केल से। चेंज ऑफ स्केल क्या होता है कि ऑब्जर्वेशंस में कोई कांस्टेंट ऐड हो, कोई कांस्टेंट डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, या कोई कांस्टेंट जो है उससे डिवाइड किया जाए ऑब्जर्वेशन को, तो उसको कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। ये आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ। Types of measures of dispersion. There are two main types of measures of dispersion: absolute dispersion and relative dispersion. Absolute dispersion. The actual dispersion or variation which is measured in the same units as the units of original data is called absolute dispersion. Absolute measure of dispersion cannot be used to compare two sets of data of different units or even if the two sets of data in the same units. To understand the concept of absolute dispersion, we see this example. For example, when we measure the height and weight of the students, their unit of measurement may be in centimeters or kilograms respectively, the two different units, ठीक है। कि अगर हम स्टूडेंट्स की हाइट और वेट जो हैं वो मेजर करते हैं तो दोनों के जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट हैं वो दोनों के डिफरेंट हैं, यानी जो हाइट होगी वो सेंटीमीटर्स में, जो वेट होगा वो किलोग्राम में, ठीक है।
To compare the variation in such case, the absolute dispersion cannot be measured. अब ऐसे केस में क्योंकि उनके जो हैं वो डिफरेंट हैं, सेम यूनिट्स नहीं हैं, तो हम इसमें एब्सोल्यूट डिस्पर्शन जो है वो यूज़ नहीं कर सकते. Another example is for the identical units of the two sets of data, such as heights of students and length of their noses. 2 centimeter absolute dispersion of heights is small, but 2 centimeter absolute dispersion of their noses is quite significant. तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरह की कि हम बच्चों के जो हैं आइडेंटिकल यूनिट्स देखने के लिए तो 2 सेट्स ऑफ डाटा हम लेते हैं. एक तो स्टूडेंट्स की हाइट हो गई और एक उनके लेंथ हो गई नोजेस की. ठीक है, अब इन दोनों में देखें, हाइट जब हम करते हैं 2 सेंटीमीटर एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, जब हाइट हम लेते हैं तो वो तो बहुत ही छोटा होगा. ठीक है, और इसी तरह से जब नोजेस की लेंथ हम लेते हैं और 2 सेंटीमीटर वो होगी तो वो तो ज़ाहिर है 2 सेंटीमीटर काफ़ी लंबी नोज़ हो जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से यूनिट तो इसमें सेम आ सकता है, यूनिट तो सेम आ जाएगा. ठीक है, और हमने सेम यूनिट को देखना है क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में बताया है कि एक्चुअल डिस्पर्शन और वेरिएशन विच इज़ मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स एज द यूनिट ऑफ ओरिजिनल डाटा, और एब्सोल्यूट डिस्पर्शन इसको हम कहेंगे. तो ऊपर की जो हमने पढ़ी है, एग्जांपल हमने देखी है, उसमें हम एब्सोल्यूट डिस्पर्शन नहीं हम यूज़ कर सकते. ठीक है, तो इस तरह की कोई एग्जांपल हो जैसे आपको मैंने बताई कि उसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगर सेम है तो उसमें हम एब्सोल्यूट डिस्पर्शन जो है वो जो है उसमें यूज़ कर सकते हैं. द मेन मेजर्स ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, अब हम जो पढ़ेंगे इसमें जो मेन कितनी मेजर्स ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्शन जो हैं जिनको हमने आगे डिस्कस करना है, उसमें सबसे पहले है रेंज, सेकंड इसमें आता है क्वार्टाइल डेविएशन या जिसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं, थर्ड पे है मीन डेविएशन और फोर्थ है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, इन सब को हमने बारी बारी आगे डिस्कस करना है. द मेन मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्शंस आर रेंज, quartile deviation or semi-interquartile range, mean deviation, variance and standard deviation. Relative dispersion, the dispersion which is expressed in the form of the ratio, coefficients or percentages and is free from any units of measurement is called relative dispersion. These are used to compare the extent of variations between two or more than two distributions. Relative dispersion क्या है? ये ratios की फॉर्म में होगा, coefficients की फॉर्म में या फिर परसेंटेजेस में. ठीक है, और इसमें कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो यूज़ नहीं होगा. ये दो या दो से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस की वेरिएशंस को कंपेयर करने के लिए हम रिलेटिव डिस्पर्शन जो है वो यूज़ करते हैं. ठीक है, relative measures of dispersion, each absolute dispersion can be converted into its relative measures as coefficient of range, coefficient of quartile deviation, coefficient of semi interquartile range. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को हम सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं. ठीक है, इन सब के जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम किससे डिनोट करते हैं? CV से. ठीक है, CV इज मोस्ट वाइडली, यानी CV क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन is most widely used than other measures. Larger value CV shows that data are more consistent. ज़्यादा वैल्यू जब होगी, इसकी वैल्यू जो होगी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, उसका मतलब क्या है कि डाटा इज मोर कंसिस्टेंट. ठीक है, डाटा इज मोर कंसिस्टेंट. Now we are going to discuss absolute measures of dispersion. The first measure is range.
Range is the difference between the maximum and minimum values of the data. ठीक है, and it is denoted by R is equal to xm minus x naught for ungrouped data. ठीक है, xm is the maximum value and x naught is the minimum value. अब हमने अनग्रुप डेटा जब हमारे पास होगा तो उस वक़्त हमने रेंज किस तरह से फाइंड करनी है, उस डेटा में हमने सबसे बड़ी वैल्यू को देखना है और सबसे छोटी वैल्यू को देखना है और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास होगा रेंज. नाउ रेंज फॉर ग्रुप डाटा. अब ग्रुप डाटा जब होगा तो रेंज हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम 2 मेथड्स हैं हमारे पास. फर्स्ट मेथड है द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम मिड वैल्यू एंड मिनिमम मिड वैल्यू and it is denoted by R is equal to xm minus x naught. अब xm क्या होगा, मैक्सिमम मिड वैल्यू, और x naught क्या होगा, मिनिमम मिड वैल्यू. ठीक है, तो फर्स्ट मेथड ये है कि हम मिड वैल्यूज़ जो होती हैं उनमें हम देखेंगे हमारी जो x की वैल्यूज़ होती हैं, मिड वैल्यूज़, क्लास मार्क्स भी जिनको हम कहते हैं, तो उसमें से सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी और सबसे छोटी जो वैल्यू होगी उसका डिफरेंस जो है वो हमारा रेंज होगा. ठीक है, तो दूसरा मेथड है द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास एंड द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास and it is denoted by R is equal to xm minus x naught. xm क्या है, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास, और x naught क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास. अब हमने क्लास बाउंड्रीज में देखना है. सेकंड मेथड क्या है कि क्लास बाउंड्रीज हम देखेंगे, जो हाईएस्ट क्लास होगी, सबसे जो बड़ी क्लास होगी, उसकी जो हाई जो उसकी अपर जो क्लास बाउंड्री है वो, और सबसे जो पहली जो लोअर क्लास होगी उसकी लोअर जो क्लास बाउंड्री होगी वो, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो रेंज होगा. Range is absolute measure of dispersion and its corresponding relative measure of dispersion is coefficient of range, which is equal to coefficient of range is equal to xm minus x naught divided by xm plus x naught. अब रेंज क्या है, रेंज जो है वो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है और इसकी रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, और वो किसके इक्वल है, xm माइनस x naught डिवाइडेड बाय xm प्लस x naught. नाउ यूजेस ऑफ रेंज, कि रेंज कहाँ कहाँ पे यूज होता है. द फर्स्ट यूज ऑफ रेंज इज extensively used. Range is extensively used in industries for the quality control of the manufactured products. इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर होती हैं उनका क्वालिटी कंट्रोल होता है. ठीक है, उनको देखा जाता है. जैसे अगर बल्ब जो है कोई कंपनी है वो प्रोड्यूस कर रही है तो उन बल्ब की लाइफ टाइम जो है उसका देखा जाता है. उसमें से कुछ एज अ सैम्पल बल्ब ले लिए जाते हैं और उनको जला के देखा जाता है. अगर वो कहते हैं कि 100 आवर्स है इसकी लाइफ टाइम जो है, या इसका इतना है जो कंपनी जो है वो क्लेम कर रही है, तो उसको उतना जला के देखा जाता है. कुछ उसमें से सैंपल ले लिए जाते हैं और फिर देखा जाता है कि आया उनका क्लेम दुरुस्त है या नहीं है. फिर उसके बाद उनको उनकी क्वालिटी को जो है वो ओके कर दिया जाता है. इसको क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं. ठीक है, उसमें भी रेंज जो है वो यूज़ होता है क्योंकि उसमें से कुछ बड़े प्रोडक्ट्स कुछ ले लिए जाते हैं, कुछ उस छोटे लेके उसका फिर जो है जो भी प्रोडक्ट्स वो कर रहे हैं उनको उसमें से कुछ लेके एज अ सैंपल उनको टेस्ट कर दिया जाता है. ठीक है, तो सेकंड क्या है, रेंज इज यूजफुल इन स्टडिंग द वेरिएशंस इन द प्राइसेस ऑफ स्टॉक एंड अदर कमोडिटीज. ठीक है, और रेंज जो है वो वेरिएशंस प्राइसेस की वेरिएशंस जो है, कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस हैं, अशिया की जो प्राइसेस हैं, उनकी वेरिएशंस को चेक करने के लिए, स्टडी करने के लिए भी रेंज जो है वो यूज़ किया जाता है.
थर्ड है द मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूजेस द रेंज फॉर वेदर फोरकास्ट। ठीक है, जो हमारा महकमा मौसमियात है वो भी रेंज को यूज़ करते हैं फॉर वेदर फोरकास्ट। एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ रेंज। It is simple to calculate and easy to understand. It gives a quick measure of dispersion. Disadvantages are demerits of range. It is not based on all the observation. जैसा कि आपने देखा कि एक मैक्सिमम वैल्यू ले दी जाती है और मिनिमम वैल्यू और उसका डिफरेंस, यानी तमाम ऑब्जर्वेशन जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। It is a very rough measure of dispersion because of its dependence on only extreme values. क्योंकि सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज ली जाती हैं इसलिए इसको रफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो जाना जाता है। ठीक है, इट इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल 4.2 फ्रॉम योर बुक ऑन पेज 146। Find the range for each of the following sets of data. A पार्ट इसमें है और वैल्यूज गिवन है 13, 7, 3, 6, 16, 5, 18 एंड 12। ठीक है, सबसे पहले तो अरेंज करेंगे डाटा को इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज कर लिया। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें 18 है और सबसे छोटी स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है वो 3 है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या आ गया हमारे पास 15। तो 15 इज द रेंज। ठीक है, अब सेकंड जो डाटा हमें दिया हुआ है उसमें वैल्यूज हैं 7, 3, 8, 7, 8, 7, 8, 7 और 18। इसको भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया और मैक्सिमम वैल्यू इसमें है 18 और मिनिमम वैल्यू है 3। तो 18 माइनस 3 ये भी आपके पास आ गया, रेंज आ गई 15। एग्जाम्पल है 4.3, ये अनग्रुप डाटा है हमारे पास। ठीक है, अनग्रुप डाटा है जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती। एग्जाम्पल 4.3 है फाइंड द रेंज फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स ऑफ 120 स्टूडेंट्स। ये पीछे आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ी है जो वैल्यूज थी 109 to 1, ये टेबल आपने देखा पीछे। काफ़ी दफ़ा हमने इसको यूज़ भी किया इस टेबल को। ठीक है, उसमें वैल्यूज़ क्या हैं 110 to 119, वेट्स इन पाउंड्स हमें दिए हुए थे 120 to 129, 130 to 139, 140 to 149, 150 to 159, 160 to 169, अप टू 210 to 219। ठीक है, ये हमें वेट्स दिए हुए हैं। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई थी 1, 4, 17, 28, 25, 18, 13, 6, 5, 2, 1। ठीक है, ये डाटा है हमारे पास। अब हमने दो मेथड पढ़े हैं, ये ग्रुप डाटा है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्लासेस भी हैं और फ्रीक्वेंसी भी है, ग्रुप डाटा है। तो ग्रुप डाटा को में रेंज फाइंड करने के लिए हमने दो मेथड पढ़े हैं। एक तो हमने मेथड पढ़ा कि अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास, और दूसरा मेथड हमने इसमें पढ़ा कि हाईएस्ट क्लास जो है उसके क्लास मार्क माइनस क्लास मार्क ऑफ द लोएस्ट क्लास, क्लास मार्क या मिड पॉइंट भी उसको कहते हैं। ठीक है, ये दो मेथड हमने पढ़े। अब हमने सबसे पहले इसकी क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है, जो कि पीछे जो है वो एग्जांपल ली गई है तो उसमें की हुई है उसने। और क्लास बाउंड्रीज क्या हैं इसकी, फर्स्ट जो आएंगी 109.5 to 119.5, 119.5 to 129.5 अप टू सोआन ये जाएगी। लास्ट जो क्लास है वो है 209.5 to 219.5। ठीक है, 219.5। अब इसकी अपर क्लास बाउंड्री जो है, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास कौन सी है 219.5, और लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास कौन सी थी 109.5। तो 219.5 में से 109.5 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी रेंज की 110 पाउंड्स। ठीक है,
और सेकंड जो मेथड हमने बताया कि ग्रुप डाटा के लिए जो दो मेथड्स हमने बताए, दूसरा मेथड क्या है कि क्लास मार्क, हम इसके क्लास मार्क जो हैं वो फाइंड कर लेंगे या मिड पॉइंट्स ले लेंगे। और वो क्या होते हैं, मिड पॉइंट्स के टू लिमिट्स को आपने प्लस किया और उसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, यानी मीन ले लेते हैं आप, और तो वो आपका क्लास मार्क होता है। जैसे फर्स्ट जो है वो 110 to 119 है क्लास, तो क्या होगा 110 प्लस 119 डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट जो क्लास मार्क है वो आपका आ गया 114.5। इसी तरह से नेक्स्ट 120 प्लस 129 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 124.5। इसी तरह से तमाम जो क्लासेस हैं उनके क्लास मार्क्स फाइंड कर लेंगे। लास्ट जो क्लास है वो है 210 to 219, 210 प्लस 219 और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्लास मार्क की जो लास्ट क्लास के सामने है 214.5। तो अब हमने क्या करना है कि हाईएस्ट वैल्यू ये है 214.5 माइनस मिनिमम वैल्यू है फर्स्ट क्लास की जो आपके पास है 114.5। इन दोनों का डिफरेंस हम फाइंड कर लेंगे और ये हमारा रेंज होगा और वो आ रहा है 100 पाउंड्स। क्वेश्चन 4.1 फ्रॉम एक्सरसाइज, इसका पार्ट ए है, फाइंड द रेंज एंड द रेंज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वैल्यूज इसमें है नंबर ऑफ पर्सन्स 1 2 3 4 5 6 7 और नंबर ऑफ हाउसेज हैं 26 113 120 95 60 42 एंड 21। ठीक है, तो इसमें सबसे जो हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन्स आप देखें सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा है, 7 है, और सबसे छोटी वैल्यू इसमें जो है मिनिमम वैल्यू वो है 1। तो 7 माइनस 1 रेंज आपके पास आ जाएगा 6। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, रेंज किसके इक्वल है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू 7 है नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू है 1, तो ये रेंज आ जाएगा 6। बी पार्ट है, फाइंड द रेंज फॉर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डाटा। इसमें फर्स्ट जो डाटा दिया गया है वो है 12 6 7 3 15 10 18 एंड 5 एंड 24। ठीक है, अब इसको सबसे पहले हमने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। ठीक है, अरेंज करने के बाद हमें जल्दी से पता चल जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू इसमें कौन सी है और मिनिमम कौन सी है। ठीक है, तो XM जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है और वो है इस डाटा के अंदर 24, और मिनिमम वैल्यू कौन सी है डाटा में 3। तो रेंज का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, XM माइनस X0 इज XM जो है वो 24 है और X0 जो है वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू 3 है, तो हमारे पास रेंज आ जाएगा 21। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का जो फार्मूला है वो है XM माइनस X0 डिवाइडेड बाय XM प्लस X0। अब XM हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 24 है और मिनिमम वैल्यू 3 है, 24 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 3, तो ये आ जाएगी हमारे पास 21 डिवाइडेड बाय 27। नेक्स्ट जो डाटा है हमारे पास सेकंड जो दिया हुआ है वो है 19 3 8 9 7 8 10 12 18 एंड 21। ठीक है, अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू हम डाटा को अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें देखने में आसानी हो जाती है। मैक्सिमम वैल्यू 21 और मिनिमम वैल्यू है 3, तो रेंज आ जाएगा XM माइनस X0, रेंज आ जाएगा 21 माइनस 3 हमारे पास 18 के इक्वल। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो डाटा है वो हमारे पास है 120 118 147 118 123 131 1
48, 142, 136 एंड 141। ये हमारे पास सारे ये डाटा जो है ये क्या है, अनग्रुप डाटा है। ठीक है, अब इसमें इसको अरेंज करेंगे पहले और फिर देखेंगे। इसमें मैक्सिमम वैल्यू है 148 और मिनिमम वैल्यू है 118। तो रेंज का फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स एम माइनस एक्स नॉट, और एक्स एम है 148 और एक्स नॉट है 118, तो ये इक्वल टू 30 आ गया रेंज। नेक्स्ट सी पार्ट है, 4.1 का जो सी पार्ट है वो ग्रुप डाटा है, और क्लास उसमें क्लासेस हैं 70 टू 74, 75 to 79, 80 to 84, 85 to 89 एंड 90 to 94, ये क्लासेस हैं। और फ्रीक्वेंसी है 2, 5, 12, 18 एंड 7। ठीक है, अब हमने दो मेथड पढ़े हैं ग्रुप डाटा में रेंज को फाइंड करने के लिए। सबसे पहला क्या है कि मैक्सिमम मिड वैल्यू माइनस मिनिमम मिड वैल्यू। अब हम इसकी सबसे पहले क्या करेंगे, जो है मिड वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। एक्स क्या है, 70 प्लस 74 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास आ गया 72। इसी तरह से 75 प्लस 79 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास आ गई 77 मिड पॉइंट। 80 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास आ गया 82। इसी तरह से नेक्स्ट 85 प्लस 89 डिवाइडेड बाय 2, 87 आ गया, और 90 प्लस 94 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास 92 मिड पॉइंट आ गया। अब सबसे जो मिनिमम और मैक्सिमम इसमें कौन सा है मिड पॉइंट, मैक्सिमम जो मिड पॉइंट है वो है 92 और मिनिमम मिड पॉइंट जो है वो हमारे पास है 72। तो एक्स एम हमारा हो गया 92 और एक्स नॉट हो गया 72। तो रेंज हमारे पास आ जाएगा, रेंज इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट, और ये इक्वल टू 20 आ गया। सेकंड जो मेथड है वो है हमने क्या करना है कि डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज हम फाइंड करेंगे। इसके लिए क्लास बाउंड्रीज क्या है कि आपने क्या करना है, 75 में से 74 को माइनस करना है, आपके पास आ गया 1 को 2 पे डिवाइड करना है, आपके पास आ गया 0.5। 0.5 जो है, जो आपके पास आंसर है, उसको लोअर जो लिमिट्स है इनमें माइनस करते जाना है और जो अपर लिमिट्स है इनमें ऐड करते जाना है। तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ जाती हैं, ये आप पहले सीख चुके हैं सब कुछ। तो लोअर क्लास बाउंड्री क्या आ जाएगी, 69.5 टू 74.5, 74.5 टू 79.5 एंड सो ऑन, और ये लास्ट जो होगी 89.5 टू 94.5। अब मैक्सिमम जो आपके पास क्लास बाउंड्री है वो है 94.5, और जो मिनिमम क्लास बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास है वो है 69.5। ठीक है, तो आपके पास एक्स एम हो गया 94 और एक्स नॉट हो गया 69, 94 एंड 69.5, 94.5 और 69.5, ये आपके पास आ जाएगा 24। और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जो है ये किसके इक्वल है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज एक्स एम माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स एम प्लस एक्स नॉट। तो इन्हीं दोनों वैल्यूज को माइनस करें और प्लस करें तो ये आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड रेंज, और ये कांस्टेंट वैल्यूज दी हुई हैं, इसके दरमियान रेंज फाइंड करना है। अब ये सारी वैल्यूज सेम हैं, कांस्टेंट हैं, तो इसका रेंज जो है वो इक्वल टू 0 होगा। रेंज ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो ये करके भी दिखा दिया है कि मैक्सिमम वैल्यू भी 4 ही होगी और मिनिमम भी 4 होगी, तो इसका जो डिफरेंस है रेंज है वो आपके पास इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि रेंज ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट रेंज, और इसमें हमें एज ग्रुप्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। ठीक है, एज ग्रुप्स क्या हैं, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50 एंड 50 टू 60। अब देखें इसमें हमें क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखें ये सेम है। ये जो डाटा ग्रुप्स हैं, ये क्लासेस जो बनी हुई हैं हमारे पास, ये क्या हैं, एक्सक्लूसिव मेथड से बनी हुई हैं, और इसमें क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत नहीं होती, और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था
कि अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास, रेंज किसके इक्वल होगा, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास, ठीक है, इसके इक्वल है ना। अब इसमें देखें अपर क्लास बाउंड्री इसमें कौन सी है, ये खुद क्लास बाउंड्रीज भी हैं ये क्लासेस, ठीक है, इनमें क्लास बाउंड्रीज की जरूरत नहीं है, देखें ना ये सेम सेम आ रहे हैं। 60 इसकी अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास इज 60 एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास इज 10, ठीक है। तो रेंज हमारे पास आ जाएगा 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 50 ईयर्स। सेकेंड मेथड है कि मैक्सिमम मिड पॉइंट माइनस ऑफ द हाईएस्ट क्लास माइनस मिड पॉइंट ऑफ द लोएस्ट क्लास या मिनिमम वैल्यू ऑफ द मिड पॉइंट, ठीक है। अब इसमें मिड पॉइंट्स हम फाइंड करेंगे पहले। x 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ जाएगा 15, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 25, 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा 35, 40 प्लस 50 ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2 ये आपके पास 45 आ जाएगा, और 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 ये आपके पास आ जाएगा 55। ये आपके पास आ गए मिड पॉइंट्स। अब मैक्सिमम मिड पॉइंट्स, इसमें मिड पॉइंट जो है वो 55 है और मिनिमम मिड पॉइंट क्या है 15 है, तो XM आपके पास 55 आ गया और X नॉट जो है ये आ गया 15। तो रेंज होगा, रेंज इज इक्वल टू XM माइनस X नॉट, और ये इक्वल टू हो जाएगा 55 माइनस 15 इज इक्वल टू 40 ईयर्स। अब हमने फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का क्या फार्मूला है, XM माइनस X नॉट डिवाइडेड बाय XM प्लस X नॉट। तो XM हमारे पास क्या है 55 है और X नॉट है 15, तो 55 माइनस 15 ये हमारे पास आ जाएगा 40, और 55 प्लस 15 ये हमारे पास आ जाएगा 70, तो 40 डिवाइडेड बाय 70 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का 0.57 ईयर्स। Students, this is your today's home task. Question from exercise, question number 4.3, part C, find range. Question number 4.4, and short question, give short answers. What is meant by dispersion? The range is generally poor measure of dispersion. Explain it.